everyone. Here I am going to discuss about introduction to drug discovery and the role of bioinformatics. In this video, we will cover introduction of drug discovery pipeline, role of bioinformatics in drug development, structure-based versus ligand-based drug design, basis of molecular talking, log and key theory, and last is induced fit concept. So first, what is drug discovery? Drug discovery is the process of identifying and developing new medicines that can prevent, treat, or cure disease. It involves finding a molecule that can interact with a biological target, like protein, RNA, DNA, enzyme, receptor, and produce a therapeutic effects. सबसे पहले समझते हैं ड्रग डिस्कवरी क्या होती है। ड्रग डिस्कवरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें साइंटिस्ट रिसर्चर्स नए मेडिसिन डेवलप करते हैं जो ड्रग्स को प्रिवेंट ट्रीट या क्योर करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ड्रग डिस्कवरी का मतलब होता है डिजीज के लिए एक इफेक्टिव मेडिसिन ढूंढना। एज एनालॉजी हम समझे तो सोचिए आपके घर में एक चोर घुस गया है। अब उस चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को पहले उसकी पहचान करनी होगी, उसकी लोकेशन पता करनी होगी और फिर उसको रोकना होगा। बिल्कुल इसी तरह डिजीज के पीछे जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं उसको आइडेंटिफाई करके उसके अगेंस्ट ड्रग डिजाइन की जाती है। Why is drug discovery is important? So drug discovery important because it improves quality of life, fight with disease, increase life expectancies, drive medical innovations, economic growth, treat and manage chronic disease, and like millions of people suffer from cancer, diabetes, Alzheimer disease, infection disease, autoimmune disorder. Many diseases still have no cure, limited treatment, drug resistance. Example, bacteria can evolve resistance against antibiotics. Scientists must continuously discover new drugs. आज दुनिया में मिलियंस ऑफ लोग कैंसर, डायबिटीज, अल्जाइमर एंड इन्फेक्शन डिजीज से सफर कर रहे हैं। कई डिजीज का अभी तक कोई कंप्लीट क्योर अवेलेबल नहीं है। कुछ डिजीज में ड्रग रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, इसलिए साइंटिस्ट को कंटिन्यूअसली नए ड्रग्स डिस्कवर करने पड़ते हैं। In this slide, I will discuss about the drug discovery pipeline from target to therapy. Like first step in drug discovery, target identification. Second is target validation. Third is hit discovery, and fourth is lead optimization. And fifth is preclinical testing, and sixth clinical trials, seventh regulatory approvals. इसको आप एक स्टूडेंट के स्कूल से लेकर जॉब तक की जर्नी की तरह समझ सकते हैं। सो ये बेसिक पाइपलाइन है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। डिजीज आइडेंटिफिकेशन, टारगेट वैलिडेशन, हिट आइडेंटिफिकेशन, लीड ऑप्टिमाइजेशन, clinical testing, clinical trials, regulatory approval, and marketed drugs. So what is a drug target? So our drug target is usually protein, enzyme, receptor, gene, RNA, molecules. Like ड्रग टारगेट कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, कोई भी रिसेप्टर हो सकता है, जीन हो सकता है, आरएनए मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ड्रग टारगेट से क्या समझ रहे हैं? जिसको ड्रग टारगेट करेगा, लाइक हमने कोई ड्रग दिया है बॉडी में, जो बॉडी में प्रोटीन्स हैं, जीन्स हैं, आरएनए है, मेम्ब्रेन है, अदर मॉलिक्यूल्स हैं, जिसको किसी डिजीज ने इफेक्ट किया है उस प्रोटीन पे जाके अफेक्ट करेगा। ठीक है, ड्रग तो टारगेट क्या हुआ हमारा? प्रोटीन। In this slide, I will discuss about role of bioinformatics here in drug discovery. So first of all, what is bioinformatics? Bioinformatics is the application of biology, computer science,
statistics, mathematics, artificial intelligence to analyze biological data and solve biological problems. So why bioinformatics needed in drug discovery? Like traditionally, drug discovery is very expensive, time consuming, high failure rate. Out of thousands of compounds tested, only a few become drugs. So bioinformatics helps scientists to reduce time, reduce cost, increase success rate, and predict result before laboratory experiments. So ट्रेडिशनल ड्रग डिस्कवरी बहुत एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होती है। एक ड्रग डेवलप करने में 10 से 15 साल लग जाते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉस्ट खर्च हो जाती है। यहाँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से हम कम कॉस्ट में और कम टाइम में इसको कर सकते हैं। जैसे कि हम समझे, इमेजिन करें जैसे कि पहले लाइक वेट, जैसे गूगल मैप बिना पूरी सिटी घूमने के शॉर्टेस्ट रूट बता देता था। लाइक पहले के जो लोग होते थे वो मैनुअली मैप डिजाइन करते थे कहीं भी घूमने फिरने के लिए। पर आज के टाइम में एआई के थ्रू एआई हमें मैप जनरेट करके देता है। वैसे ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट को शॉर्टकट और स्मार्टर वे प्रोवाइड करती है। रोल ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स अक्रॉस द ड्रग डिस्कवरी पाइपलाइन हेयर, डिजीज आइडेंटिफिकेशन, टारगेट आइडेंटिफिकेशन, टारगेट वैलिडेशन, हिट डिस्कवरी, lead discovery, lead lead optimization, admit prediction, and clinical trials. So bioinformatics contribute at every stage. So first, disease identification. Understand the disease mechanism. Which gene are involved, which protein are involved, and which pathway are disrupted. Like disease identification में हम सबसे पहले disease को समझते हैं। कौन से जीन इन्वॉल्व है, कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व है, कौन से पाथवे अफेक्टेड है। टारगेट आइडेंटिफिकेशन में, इन टारगेट आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, व्हाट इज टारगेट? एज आई सेड लास्ट स्लाइड, एक टारगेट प्रोटीन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, रिसेप्टर हो सकते हैं, जीन्स हो सकते हैं, आरएनए हो सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी डिजीज में। तो इन टारगेट आइडेंटिफिकेशन में टारगेट वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डिजीज प्रोग्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ओके, तो टारगेट को हम डिजीज का मेन विलन समझ सकते हैं। इसमें हम टारगेट आइडेंटिफिकेशन में हम डिफरेंट डिफरेंट बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स का यूज कर सकते हैं। लाइक एनसीबीआई, इसमें ऑल जीन्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, सारे प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, लिटरेचर रिव्यूज अवेलेबल होते हैं। डिजीन नाइट में हम डिजीज जीन एसोसिएशन के बारे में देख सकते हैं। एनजेबल में सारी इंफॉर्मेशन होती है जीन सीक्वेंस एंड वेरिएंट्स की। स्ट्रिंग में प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विटलिगो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें व्हाइट पैचेस हो जाते हैं पूरी बॉडी पे। सो वी कैन आइडेंटिफाई जीन सच एज ट्राई GZMB, PTPN22, IF1F, 1H1 using bioinformatics database outcomes like disease associated genes are identified. Next is target validation. अब हमें कंफर्म करना होता है कि जो टारगेट आइडेंटिफाई किया है वही डिजीज को एक्चुअली रीजन है, जो हमने टारगेट आइडेंटिफाई किया है क्या वही डिजीज का एक्चुअल रीजन है। सो इसमें भी हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स का यूज करेंगे, जिसमें हम यूनिप्रोट का यूज करेंगे, स्ट्रिंग का यूज करेंगे। जो यूनिप्रोट है ये प्रोटीन डाटाबेस है जिसमें प्रोटीन से रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, लाइक प्रोटीन सीक्वेंस, प्रोटीन के सारे स्ट्रक्चर्स लाइक अल्फा 4 स्ट्रक्चर, एक्सल स्ट्रक्चर्स, ऑल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं। स्ट्रिंग में हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन एनालिसिस करते हैं। स्ट्रिंग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम प्रोटीन दूसरे प्रोटीन के साथ कितना इंटरेक्ट कर रहा है और कितने नोड्स क्रिएट कर रहा है और कितना कनेक्टेड है ये देखने के लिए। कैग के थ्रू हम पाथवे एनालिसिस कर सकते हैं। सो व्हाई इंपॉर्टेंट, अ ड्रग कैन नॉट बी डेवलप्ड विदाउट आइडेंटिफाइंग अ टारगेट। इन दिस स्लाइड इन दिस स्लाइड में हम कंफर्म करेंगे
कि target validation, like confirm that the target truly causes the disease, verify if we block this target, does disease improve. Bioinformatics methods used here, like gene expression analysis. इसमें हम क्या करेंगे, हम जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए हम कोई भी टूल यूज करेंगे, लाइक जियो डाटा सेट, जियो टू आर डी सेक्टो। इन सब में ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस की सारा डाटा होता है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम कोई भी जीन की एक्सप्रेशन आईडी लेकर इस पे इंसर्ट करेंगे, फिर हमें जो डाटा मिलेगा उसमें हमें केसेस और कंट्रोल अलग अलग सेपरेट करने हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस करनी है। एनालिसिस के बाद हमें जो जीन्स जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस का जो डाटा मिलेगा, जो जीन्स मिलेंगे, फिर उन जीन्स का हम आगे एनालिसिस कर सकते हैं, कैग के थ्रू, डेविड के थ्रू, इंडिचर के थ्रू। ये हेल्प करते थे आइडेंटिफाई करने में अफेक्टेड पाथवेज को। एक टारगेट आइडेंटिफिकेशन में मैंने आपको टारगेट वैलिडेशन का एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। टारगेट आइडेंटिफिकेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, टारगेट आइडेंटिफिकेशन में टारगेट वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होते हैं जो डिजीज प्रोग्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मैंने आपको पहले समझा दिया था, लेकिन मैंने टारगेट वैलिडेशन का पहले एक्सप्लेन कर दिया बाय मिस्टेक। ओके, तो टारगेट आइडेंटिफिकेशन के बाद करते हैं टारगेट वैलिडेशन। इसमें हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं, साइटोस्केप का यूज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई की हब जीन्स आइडेंटिफाई करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी डिजीज में, उन की हब जीन्स को निकालने के लिए हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। तो पहले हम एक नेटवर्क लाइक जीजेडएमबी को इंसर्ट करेंगे इसमें स्ट्रिंग में। जैसे कि मैंने जीजेडएमबी को इंसर्ट किया स्ट्रिंग में, तो मुझे स्ट्रिंग के थ्रू एक पाथवे मिला, सॉरी आई मीन मुझे ये टेबल मिला, ये ग्राफ मिला। इसमें मैंने देखा कि जीजेडएमबी कितना इंटरेक्ट कर रहा है और जीन्स के साथ, लाइक बीड, डीएफएफ ए, कैसपी 8, कैसपी 3, इनके साथ सबसे ज्यादा नोड क्रिएट कर रहा है। तो मुझे ये नेटवर्क मिला किसकी, स्ट्रिंग के थ्रू। सो इसके इस नेटवर्क के थ्रू मैं आगे आइडेंटिफाई कर सकती हूँ और हब जीन्स को, लाइक उसमें हम साइटोस्केप के थ्रू अपना नेटवर्क बना सकते हैं और उसमें हम हब जीन्स फाइंड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नोड एंड की वैल्यूज। Like for example, as I said, GZMB, I used string analysis, interaction network, then form validation as validation as disease target. So इसके बाद हम करेंगे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। सो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में ड्रग डिजाइन करने के लिए प्रोटीन की 3D स्ट्रक्चर चाहिए। तो हमारे पास कितने सोर्सेज होते हैं, हमारे पास बहुत सोर्सेज होते हैं, जैसे कि प्रोटीन डाटा बैंक, अल्फा फोल्ड, एंड लाइक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हम डॉकिंग नहीं कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रक्चर के। तो विदाउट स्ट्रक्चर डॉकिंग बिकम डिफिकल्ट, सो वी नीड structure determination here. We can use different tools like protein data bank, store experimental determined structures, AlphaFold predict protein structure using AI. Double by DeepMind can predict structures even when experimental structures are unavailable. So why structure matter? Like protein like a lock, okay? And consider protein consider like lock and drug consider like key. So without knowing the lock shape, we cannot design the key. Okay. So fifth step is active site prediction. प्रोटीन की किस रीजन पर ड्रग बाइंड करेगी, उसको एक्टिव साइट कहते हैं। लाइक फाइंड वेयर द ड्रग बाइंड्स, इसमें हम कुछ टूल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कास्ट पी हो गया, डॉग साइट हो गया, पी2 रैंक हो गया। सो इसमें नॉर्मली अगर हम एज एनालॉजी के बेसिस पे समझे तो पूरे घर में गेस्ट कहीं भी नहीं बैठते, एक स्पेसिफिक रूम होता है जिसे हम गेस्ट रूम बोलते हैं। ऐसे ही ड्रग प्रोटीन पे कहीं भी बाइंड नहीं करता, वो एक स्पेसिफिक साइट पे बाइंड करता है, इसे हम एक्टिव साइट बोलते हैं। तो इन टूल्स का यूज करके फिर हमें जो आउटपुट मिलेगा, क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें बाइंडिंग परफेक्ट एक्टिव साइट रेजिड्यूज। Example, GZMB active site contain catalytic residue important for function. These residues become docking targets.
After it, we do virtual screening millions of screening millions of compounds using computers. Traditional methods, 10,000 approx compound tested experimentally, very expensive. So we use bioinformatic methods. Computer screen compound virtually. We use database here like Zinc, PubChem, Campbell, and software Autodoc Vina and Pyrex. तो वर्चुअल स्क्रीनिंग में बेसिकली अब साइंटिस्ट 1,000 या मिलियन कंपाउंड्स को कंप्यूटर के थ्रू स्क्रीन करते हैं। लाइक आप मान सकते हैं कि जॉब के लिए 10,000 के अप्रॉक्स एप्लीकेशन आई हैं। पहले सॉफ्टवेयर शॉर्टलिस्ट करेगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो सेम लाइक वर्चुअल स्क्रीनिंग में करते हैं हम। आफ्टर वर्चुअल स्क्रीनिंग के बाद हम करते हैं मॉलिक्यूलर डॉकिंग। इसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं ड्रग टारगेट इंटरेक्शन को। और लाइक क्वेश्चन इज, विल द मॉलिक्यूल बाइंड टू द टारगेट? सो मॉलिक्यूलर डॉकिंग में बेसिकली आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पहली बात ड्रग डिजाइनिंग में। एक मॉलिक्यूलर डॉकिंग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक मॉलिक्यूलर डॉकिंग एक कंप्यूटेशनल टेक्निक है जो प्रिडिक्ट करती है कि लाइगेंड प्रोटीन के साथ कैसे बाइंड करेगा। लाइक एक लॉक और एक की आपस में कैसे बाइंड करेंगे, कैसे लॉक होगा। एक की एक लॉक को कैसे लॉक करेगी, तो डॉकिंग प्रिडिक्ट करती है कि की लॉक में कितनी अच्छा फिट होती है। एक मॉलिक्यूलर डॉकिंग में हमें जो आउटपुट्स मिलेंगे वो मिलेंगे बाइंडिंग एनर्जी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ओके, इसमें हम टूल्स का यूज कर सकते हैं जैसे कि ऑटोडॉक हो गया, ऑटोडॉक वीना, ग्लाइड एंड कोल्ड। सो आफ्टर molecular docking, we will do molecular dynamic simulation here, where we check the stability after docking. Docking gives static snapshot. MD simulation gives movie of molecular motion. So software we used here like Promax, and we used in molecular docking. Sorry, I mean we used different force field like Amber, Charm for as a consider force field in display normally actually जो फोर्स फील्ड होता है ये एटम्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में बताता है। तो हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्स फील्ड यूज करते हैं किसमें मॉलिक्यूलर डायनेमिक सिमुलेशन में। वो डिपेंड करता है कि हमारा प्रोटीन को किस टाइप के फोर्स फील्ड की नीडेड है। ओके, सो ग्रोमैक्स हम एज अ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं यहाँ पे। सो व्हाट डज एमडी स्टडी? तो एमडी में हम क्या स्टडी करते हैं? एमडी में हम स्टडी करते हैं रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, जिसमें हम स्ट्रक्चर की ओवरऑल स्टेबिलिटी के बारे में देखते हैं। RMSF रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन, जिसमें हम रीजंस रेजिड्यूज की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में देखते हैं कि वो कितना फ्लेक्सिबल हुआ है। लाइक रेडियस ऑफ गायरेशन, इसमें हम प्रोटीन के कॉम्पैक्टनेस के बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में बाइंडिंग स्टेबिलिटी, एंड एसए में सॉल्वेंट एसेसिबिलिटी। So why MD is important? Docking tile it can bind. MD tile it remains stable after binding. Like after MD, uh, we do admit prediction, like predict drug property before laboratory testing. like admit A means absorption, कि वो जो ड्रग है वो कैसे एब्जॉर्ब हुआ है। डी डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एंड एम मेटाबॉलिज्म, कि वो कैसे मेटाबॉलाइज हुआ है, कैसे ब्रेक डाउन हुआ है उसका। एक्स ई मीन्स एक्सक्रीशन, कि वह कैसे एक्सक्रीट हुआ है। टी मीन्स टॉक्सिसिटी। ओके, तो हम इसमें ना नॉर्मली कुछ टूल्स का यूज करते हैं, इसका नाम है स्विस एटमी एंड पीके सीएसएम एडमिट लैब। ये ये टूल्स है जिसका हम यूज करते हैं एडमिट प्रिडिक्शन के लिए। जैसे कि मैंने बताया, इसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं ड्रग की प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, लाइक हम कोई भी ड्रग ले लेंगे, जैसे कि हमने पब कैम से कोई ड्रग लिया सपोज। उस ड्रग की हमें स्माइल कॉपी करनी है, उस स्माइल को हमें इंपोर्ट करना है स्विस एडमिन में। उसके बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें प्रिडिक्शन मिलेगी ओरल बायो अवेलेबिलिटी की।
ट्रिपल बी परमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी और सॉल्युबिलिटी की, मतलब कितना कैसे ऑब्सॉर्ब हुआ है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कैसे मेटाबोलाइज हुआ है, कैसे एक्सक्रीट हुआ है, और कैसे टॉक्सिसिटी है उसकी। फिर इसके बाद हम ड्रग रिपर्पसिंग करेंगे, फाइंड न्यू यूज फॉर एग्जिस्टिंग ड्रग्स। जो पहले से ड्रग्स अवेलेबल है उनको हम दोबारा से कैसे रीयूज कर सकते हैं, हम वो करते हैं ड्रग रिपर्पसिंग में। हम पुराने ड्रग्स को न्यू ड्रग्स न्यू ड्रग्स बनाकर यूज करते हैं। लाइक हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई मोबाइल फोन है, ओल्ड स्मार्टफोन है, ओके, कोई स्मार्ट मोबाइल फोन है जो कि हमने उसका रीयूज किया है और हमने उसका एक सीसीटीवी कैमरा बना दिया है। सो अगर हम बायोलॉजिकल एग्जांपल से समझे तो कोविड-19 रिसर्च वी स्क्रीन अप्रूव ड्रग कंप्यूटेशनली, सो बेनिफिट्स फास्टर, चीप एंड लोअर रिस्क। Clinical bioinformatics used during clinical trials, application like biomarkers discovery, patent certification, precision medicine. Artificial intelligence in drug discovery. Modern bioinformatics now uses AI applications like protein structure predictions, molecule generation, drug repurposing, toxic prediction. Example here like AlphaFold, ये भी एआई के बेसिस पे वर्क करता है। डीप लर्निंग मॉडल्स हो गए, जनरेटिव एआई हो गया, ये जितनी भी है ये सब एआई के एल्गो पे वर्क करते हैं नॉर्मली। In this slide, I will discuss about the structure-based drug design and ligand-based drug design. So, first, what is drug design? Drug design is the process of creating new medicine that can interact with a specific biological target and treat disease effectively. Main objectives like increase effectiveness, reduce side effects, improve safety, save time, cost during drug development. Drug design is mainly divided into two approaches. First, structure-based drug design uses the 3D structure of the target protein. Ligand-based drug design uses information for already known active compounds. So, what is structure-based drug design? Structure-based drug design is method in which researchers use the three-dimensional structure of a target protein to design drug. The protein structure act as a blueprint for developing new molecules. जब प्रोटीन का जब प्रोटीन की स्ट्रक्चर अवेलेबल हो तो हम एसबीडीडी यूज करते हैं नॉर्मली। लाइक आपके पास लॉक है और उसके एग्जैक्ट शेप भी पता है आपको, अब आप इजीली की डिजाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं बिफोर स्टार्टिंग। रिसर्चर्स नीड प्रोटीन स्ट्रक्चर obtained from X-ray crystallography, NMR spectroscopy, and AlphaFold prediction. So database we used here, Protein Data Bank, UniProt. So this is a basic workflow of structure-based drug design. Target identification. Second, obtain protein structure. Third, binding site identification. Fourth, molecular docking. Fifth, virtual screening. Sixth, lead optimization. Seventh, molecular damage simulation. Seventh, experimental validation. So here ligand-based drug design. So ligand-based drug design is used when the protein structure is unknown. जब प्रोटीन स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होते तब हम ligand बेस्ड ड्रग डिजाइन का यूज करते हैं। लाइक अगर एज अ एनालॉजी हम इसको समझे तो लॉक नहीं मिला लेकिन पुरानी सक्सेसफुल की अवेलेबल है, उनको देखकर नई की डिजाइन की जा सकती है। सिर्फ ऐसे ही हम ligand बेस्ड ड्रग डिजाइन में करते हैं। इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है लाइक नोन एक्टिव कंपाउंड्स, बायोलॉजिकल एक्टिविटी डाटा, केमिकल स्ट्रक्चर। databases here, Camber, PubChem, and drug banks.
Workflow of ligand-based drug design. Like known active compounds, molecular descriptor calculations, pharmacophore modeling, QSAR modeling, virtual screening, lead optimization, after virtual screening, lead identification, lead optimization, experimental validation. So, what is pharmacophore modeling? A pharmacophore represents essential features required for biological activity. फार्माकोफोर उन एसेंशियल फीचर्स का कलेक्शन है जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक एज एनालॉजी समझिए तो कार के लिए स्टीयरिंग, ब्रेकर एंड इंजन एसेंशियल है. वैसे ही मॉलिक्यूल के भी कुछ इंपॉर्टेंट और एसेंशियल फीचर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. लाइक फीचर्स: हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, हाइड्रोफोबिक रीजन, एरोमेटिक रिंग, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज. व्हाट इज QSAR? क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी. क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी who relates molecular properties with biological activity. For example, we analyze molecular weight here, log P, hydrogen bond donor, surface area to predict activity. मशीन लर्निंग इन LBDT. सो मशीन लर्निंग का यहाँ यूज ये है कि लाइक मॉडर्न LBDT का यूज है रैंडम फॉरेस्ट. हम मशीन लर्निंग में कुछ एल्गोरिथम्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि रैंडम फॉरेस्ट में हम बहुत लोगों का डिसीजन लेके या बहुत एल्गो का डिसीजन लेके एक फाइनल डिसीजन प्रिडिक्ट करते हैं. तो सेम इसमें भी सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM मॉडल्स को बोलते हैं. तो इस मॉडल में नॉर्मली होता क्या है, इसमें हम सेपरेशन करते हैं डिजीज का, लाइक बोले तो कंट्रोल एंड केसेस का, डिजीज का और नॉर्मल का. नॉर्मल और डिजीज के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं, उसको हम सपोर्ट वेक्टर मशीन बोलते हैं. पर्पस है इसका प्रिडिक्ट एक्टिविटी ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स. So here is the advantages of LBDT. Advantage is no protein structure required here, faster approach, cost effective, useful for novel targets, cost effective, suitable for large data sets. And limitations of LBDT depends on known active compound, less mechanistic information may generate false predictions. Accuracy depends on dataset quality. So this is a comparison between structure-based drug design and ligand-based drug design. So these are the features. Like protein structure needed in structure-based, protein structure needed here. In ligand-based, no need here. Like active ligands needed in SB optional and ligand based required. एक्यूरेसी की बात करें तो स्ट्रक्चर बेस में हायर होती है और ligand बेस में मॉडरेट होती है. कॉस्ट की बात करें तो स्ट्रक्चर में हायर होती है, ligand में लोअर होती है. बाइंडिंग इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर में डिटेल्ड होती है और ligand में लिमिटेड होती है. सेम मॉलिकुलर डॉकिंग में स्ट्रक्चर बेस्ड मॉलिकुलर डॉकिंग स्ट्रक्चर बेस में की जाती है, ligand बेस में जरूरी नहीं है कि करें. QSAR में रेयरली यूज होता है, रेयरली यूज होता है QSAR. स्ट्रक्चर बेस्ड में, लाइगेंड बेस्ड में होता ही होता है कॉमनली यूज. फार्माकोफोर पॉसिबल होते हैं और लाइगेंड बेस्ड में कॉमन होते हैं. सो मॉलिकुलर डॉकिंग, as I told about it previous slide little bit, like in this slide I will discuss in detail. What is molecular docking? Molecular docking is a computational technique used to predict how a molecule bind to a target protein. The main goal is to determine how the ligand binds, where it binds, how strongly it binds, which interactions stabilize the complex. So why is molecular docking important? Before spending money, time in the laboratory, researchers want to know, will the molecule bind? Is the binding strong enough? Which compound is better than other?
Docking help answer this question computationally. So role of bioinformatics, so I mean role of molecular docking in drug discovery. So मॉलिक्यूलर टॉकिंग का रोल है लाइक इट इज यूज फॉर मॉलिक्यूलर टॉकिंग तो हम ड्रग डिस्कवरी में इसलिए करते हैं और डिजीज आइडेंटिफिकेशन के लिए टारगेट आइडेंटिफिकेशन के लिए टारगेट वैलिडेशन के लिए मॉलिक्यूलर टॉकिंग के लिए लीड आइडेंटिफिकेशन लीड ऑप्टिमाइजेशन मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग एंड ड्रग डेवलपमेंट के लिए सो हियर इज द की कंपोनेंट्स ऑफ molecular talking. The first component is receptor. The protein involved in disease, example है EGFR, कैंसर। EGFR एक कैंसर का प्रोटीन है या आप बोल सकते हैं हम रिसेप्टर है एचआईवी प्रोटीज ZMB protein structure is usually obtained from PDB as I mentioned previously. प्रोटीन स्ट्रक्चर हम इजीली ढूंढ सकते हैं किसमें प्रोटीन डाटा बैंक में कोई भी प्रोटीन स्ट्रक्चर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो अल्फा फोल्ड के थ्रू उसको जनरेट कर सकते हैं सेकेंड है ligand the molecule that may become a drug source यूज करते हैं जिंक database pubchem camel drug bank example natural compound synthetic molecule FDA approved drugs what happened during docking the software tried to place the ligand into the protein binding pockets the ligand is rotated twisted moved in thousands of possible positions. The software then identifies best orientation, interaction, and lowest energy pulls. So, what is a binding site? A binding site is the region where a ligand bind to a protein. बाइंडिंग साइट वो रीजन है जहां ligand एक प्रोटीन से बाइंड करेगा ऐसा नहीं कि कहीं भी वो बाइंड कर जाएगा तो बाइंडिंग साइट एक एरिया है जहाँ पे वो जाके बाइंड करेगा प्रोटीन से सो टाइप्स ऑफ बाइंडिंग साइट डिफरेंट टाइप की बाइंडिंग साइट्स होती हैं लाइक एक्टिव साइट लोकेशन वेयर नेचुरल सबस्ट्रेट बाइंड जहाँ नेचुरल सबस्ट्रेट नॉर्मली बाइंड करता है लाइक एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट और वो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा एरोस्टैटिक साइट लोकेशन अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट लाइक जो उसकी लोकेशन होती है वो एक्टिव साइट पे नहीं होती उससे थोड़ा दूर होती है बाइंडिंग चेज प्रोटीन बिहेवियर इनडायरेक्टली जैसे कोई इनहिबिटर या कोई भी सब्सट्रेट आके इनहिबिटर ही बोल सकते हैं या कोई भी सब्सट्रेट आके बाइंड करता है एरोस्टेटिक साइट से तो एंजाइम अपनी शेप को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है so many modern drugs target allosteric sites so molecular recognition one of the most important concept protein and ligand recognition each other through shape complementarity and chemical complementarity like uh, chemical complementarity, charges and functional group must matches. Like here, I am discuss about lock and key model. So lock and key model, as you see here, like this is a key and this is a lock. This key fit in this lock, like same like enzyme as a lock and substrate as a key. Like इस लॉक में वही की एडजस्ट होगी जो इस लॉक की होगी ऐसे ही इस एंजाइम में वो ही सबस्ट्रेट होगा जो इसके लिए बना होगा लाइक उसकी एक्टिव साइट पे बाइंड होगा सो फिर जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में बाइंड हो जाते हैं नॉर्मली जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो एक्टिव साइट पे बाइंड करता है जैसे वो एक्टिव साइट पे बाइंड करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है सो ये मॉडल प्रपोज किया था एमिल फिशर ने प्रोटीन इज रिजिड लिगैंड इज रिजिड ओनली एग्जिट फिट पर लाइक प्रोटीन भी रिजिड होती है लिगैंड भी रिजिड होता है ओनली एग्जिट फिट जो होता है वो वर्क करता है एग्जिट की एक एग्जिट लॉक में ही जाके बाइंड होती है so here key is a substrate and lock is an enzyme and lock and key complex is formed here second है induced fit model ये प्रपोज किया था डेनियल कॉजलैंड ने प्रोटीन चेंज shape after ligand binding. Ligand may also adjust. This model is closer to reality. लाइक हम फॉर एन एग्जाम्पल या ऐसा एनालॉजी हम समझ सकते हैं कि हमने कोई भी ग्लव पहना है अपने हैंड पे और वो ग्लव हमारे अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया है सिर्फ इंड्यूस्ड विथ मॉडल भी वही बताता है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर डॉकिंग सो
मॉलिक्यूलर डॉकिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक पहले रिजिड डॉकिंग, प्रोटीन भी फिक्स्ड होता है, लिगैंड भी फ्लेक्सिबल होता है, मतलब ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता, लिमिटेड होता है, लिमिटेड फ्लेक्सिबल एंड फास्ट होता है बट रियलिस्टिक होता है। सेकंड होता है फ्लेक्सिबल टॉकिंग, लिगेंड्स रोटेट्स फ्रीली, प्रोटीन में पार्शियली मूव, मोर रियलिस्टिक। Most modern talking uses flexible ligand. Semi-flexible talking, totally fixed. Ligand flexible, most commonly used. Example like Autotalk Vina we use here for semi-flexible talking. So this is a basic workflow. Like talking workflow is protein preparation first, ligand preparation, binding site selection, grid generation, talking calculation, and scoring and ranking interaction analysis. Like first step is protein preparation. Raw protein structure contain water molecules, missing atoms, unnecessary chains, co-crystallized ligand. So researchers remove water, add hydrogens, repair structure, assign charges. So tools researcher used like Discovery Studio, Chimera, and Python. Step second is ligand preparation. Ligand must be optimized before talking. Tasks include structure correction, energy minimization, charge assignment, and hydrogen addition. Binding site identification need step A, need to know where docking should occur. Methods experimental co-crystal structure here. Computationally pocket prediction tool we used like Castp, DogSite, and Frankware. Fourth step is grid generation. So, what is grid? Talking software searches only within a defined box. This box is called the grid. So, search algorithm use here the docking program explore many ligand conformation. Algorithms include here genetic algorithm. So, search algorithm, the docking program explores many ligand conformation. Algorithm include like genetic algorithm, a natural selection, best candidates survive. Monte Carlo, random trials and errors, like used random sampling, stimulated annealing, like im- inspired by metal cooling, gradually reach lowest energy state. एक गरम मेटल को धीरे धीरे ठंडा करके स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाते हैं, हम शेप को स्टेबल बनाते हैं. What is pose? A pose is one possible orientation of the ligand inside the protein. A docking run may generate 10 poses, 20 poses, 100 poses. The best pose usually has the lowest energy. तो pose ligand की एक specific orientation होती है, लाइक एक चेयर पर बैठे आप, तो एक चेयर पे बैठने की बहुत सारे तरीके होते हैं और हर सिटिंग पोजीशन एक पोज कहलाएगा. सो ऐसे ही a pose is one of the possible orientation of ligand inside the protein. The best pose usually has the lowest energy. Best pose वही होगा जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा लोएस्ट होगी. So what is talking score? So talking score क्या होता है? So हर पोज को सॉफ्टवेयर एक स्कोर देता है. लोअर एनर्जी बेटर बाइंडिंग. So here talking software calculate a score for each pose. The score estimate binding affinity usually expressed in K calorie per mole. Like so here is the table like A, B, C compound. Here is the talking score like A show -4.5,
B show minus 7.5 and C show minus 9.5. Compound C appear the strongest because it's minus 9.5. Lower energy and better binding. Why negative values? बाइंडिंग की टाइम एनर्जी रिलीज होती है नॉर्मली, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा. लाइक बाइंडिंग रिलीज एनर्जी, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस हैव लोअर एनर्जी. लाइक -4 देखें तो वो वीकर होती है एज कंपेयर करें तो -10 से. -10 स्ट्रॉन्गर देन -4. bind Here is the binding energy interpretation. Like binding energy here, if binding energy is less than -4, so we consider like speed. And -4 to -6 moderate, -6 to -8 good, -8 to -10 is strong, and more than -10 is very strong. These are rough guidelines only, not strict rules. Types of molecular interactions. Docking predict interactions. Docking predict interactions responsible for binding. Like first is hydrogen bond, most important interaction. Hydrogen bond is the most important interaction. Like we can consider as a strong handshake. And hydrophobic interaction, non-polar group clustered together. Example, phenyl rings alkyl chain, important for stability. ऑयल मॉलिक्यूल वाटर से बचकर एक साथ रहना पसंद करते हैं. हम ऐसा बोल सकते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस में. वंडरवॉल फोर्सेस, ये सबसे वीक इंटरेक्शन माना जाता है. इंडिविजुअली वीक, कलेक्टिवली इंपॉर्टेंट. सबसे वीक फ्रेंडशिप बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इंटरेक्शन की तरह हम कंसीडर कर सकते हैं. लाइक अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कैन स्ट्रांगली स्टेबलाइज द बाइंडिंग. नेगेटिव एंड पॉजिटिव सबको पता है कि अपोजिट चार्ज होते हैं और अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को, जिसकी वजह से किसी भी स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी होती है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है. कैन स्ट्रांगली स्टेबलाइज. लाइक किसी भी स्ट्रक्चर के साथ जो भी उसकी बाइंडिंग होती है लाइगेंड की, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है. किसके थ्रू? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के थ्रू. और सॉल्ट ब्रिज जो स्ट्रॉन्गेस्ट है. कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. सिक्स्थ है पाई पाई stacking occur between aromatic ring. Example, phenylalanine or tyrosine, tryptophan, ligand aromatic ring. Seventh है pi cation interaction. Aromatic ring interact with positive charge, important in many drug target complexes. तो टॉकिंग के बाद अब हमें क्या मिलेंगे? हमें मिलेगा टॉकिंग स्कोर. टॉकिंग स्कोर में बाइंडिंग स्ट्रेंथ एस्टिमेट होगी. बाइंडिंग फोर्स, लाइगेंड ओरिएंटेशन बताएगा. जो इंटरेक्शंस लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक कॉन्टेक्ट्स, सॉल्ट ब्रिज एंड पाई इंटरेक्शन. बाइंडिंग रेजिड्यू, इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड इन्वॉल्व इन बाइंडिंग्स. और ये सब विजुलाइज करेंगे हम किसके थ्रू? जो हमारे टॉकिंग के रिजल्ट्स हैं उनको विजुलाइजेशन के लिए हम यूज करेंगे पाइमोल का, डिस्कवरी स्टूडियो का और काइमेरे का. पाइमोल में हम नॉर्मली 3D स्ट्रक्चर देख सकते हैं किसी भी प्रोटीन का. डिस्कवरी स्टूडियो में हम 3D इंस्ट्रक्शन मैप देखते हैं. काइमेरा एक एडवांस एनालिसिस है. सो लिमिटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर टॉकिंग. So main problem is protein flexibility often ignored, solvent effect simplified, scoring function imperfect, false positive possible, binding energy is only an estimate. Why molecular talking is needed? I mean, why molecular dynamics is needed after docking. So docking provide a snapshot. It answers can the ligand bind. Molecular dynamic answers will the ligand remain bound over the time. MD evaluate stability, protein flexibility, real elastic movement, and hydrogen bond persistence. So in this part, in this part one, and I explained all the theoretical concept here. In part two, I will show everything practically, which will help you understand the process much better. Thank you so much for watching this video. If you have any question, doubt, or if there's
anything you didn't understand, please leave a comment below. I will do my best to answer your question. Thank you and see you in next video.